Good afternoon, students. My name is Ajit. So today I am going to explain you the cell division topic. Okay, this is the topic in a second chapter. In the previous video and previous lecture, we have seen how carbohydrates, fats, proteins helping us for getting energy. Okay, means we have, in short, I'll tell you, we have seen cellular respiration, aerobic cellular respiration, anaerobic cellular respiration. Okay, all these things we have seen. Now we are moving for the cell division. Okay, cell division, why it is needed, that we are going to discuss in these 6 points. Okay, so let's start with cell division now. The cell division is an essential life process because for the for increasing height, okay, we need cell division to get happen. Okay, if any scratches happens by accident on our body, okay, for repairing that scratches, okay, we need cell division. Okay, cell division is helping us. Okay, whenever any new child takes a birth, okay, how it comes, it is because of the cell division. So ये हम लोग बात करने वाले हैं अभी, ठीक है. So first point we'll discuss that cell division is the process of one cell splitting into two identical copies. Okay, cell division is what? One cell split होता है into two identical means what? Similar copies. Okay, मतलब एक सेल से दो सेल बनते हैं and these two cells are identical. Okay, so there are two types of cell division basically, mitosis and meiosis. ओके, मिटोसिस में हम लोग को ये प्रोसेस दिखाते हैं, दैट इज सेल स्प्लिट्स इनटू टू आइडेंटिकल कॉपीज, मतलब एक सेल के दो आइडेंटिकल कॉपीज क्रिएट होते हैं मिटोसिस में. ओके, एंड द सेकेंड वन इज मेयोसिस. तो मेयोसिस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है. लेट्स सी मिटोसिस इज व्हाट. मिटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल. ओके, सोमैटिक सेल मीन्स व्हाट? एनी सेल एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल. ओके, reproductive cell, I mean to cell sperm cell and egg cell. Okay, sperm cell related to the man and egg cell related to female. Okay, so mitosis occurs in somatic cell, मतलब egg cell and स्पर्म सेल छोड़ के जो कोई भी सेल्स है हमारे बॉडी के, लाइक स्किन के सेल्स रहेंगे, आईज के सेल रहेंगे, नोज के रहेंगे, फोरहेड के रहेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स के रहेंगे, तो ये जो कोई भी सेल्स है, दीज आर सोमैटिक सेल्स अदर देन सेक्स सेल्स. ओके, एंड दिस इज रिलेटेड, सोमैटिक सेल्स रिलेटेड टू द एनिमल, वेयर एज स्टेम सेल्स also get divided by mitosis process and stem cells are related to plants, okay, of the body. So in short, in a eukaryotes मतलब आपको पता रहेगा, the animals or plants which are having nucleus membrane. okay, nucleus membrane जिनको रहता है जिनके सेल में, वो सभी यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है. Now let's move for fourth point, that is meiosis. मिटोसिस का तो हम लोग ने बात कर लिया. What is meiosis? So meiosis occurs in germ cells. Germ cell, I mean to say sperm cell and egg cell. Okay, germ cell means reproductive cell. ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है. तो sperm cell and egg cell बेसिकली इनमें meiosis प्रोसेस फॉर्म होता है. ओके, meiosis प्रोसेस से सेल डिवीजन होता है. ओके, नाउ सेल डिवाइड फॉर मेनी रीजंस. ओके, द रीजन बिहाइंड सेल डिवीजन इज एक्सप्लेन ओवर हियर, दैट इज लाइक टू रिप्लेस ओल्ड और डेड और डैमेज सेल. ओके, हमारे बॉडी के जो ओल्ड सेल्स रहते हैं, ईयर बाय ईयर हमारे पाम पे जहाँ पे सेल्स रहते हैं वो सेल डेड हो जाते हैं, राइट, वो रिप्लेस हो जाते हैं ओल्ड वाले सेल. ओके, ऑल्सो डेड सेल भी हमारे क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं. डैमेज सेल by some accident, if any scratches get over our body, that time these cells get exchanged or changed by this cell division. Okay na. Restoration of emaciated body. Emaciated body means what? कि ऐसी body जो is suffering due to some illness या फिर कुछ डिसीज से वो सफर हो चुकी है and body is getting recovered. Okay, for example, if any person suffers from dengue, ओके तो उसके बॉडी में बहुत सारे इंटरनल सेल्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, राइट. दैट टाइम आवर बॉडी
could be called as a emaciated body, and that emaciated body what happens, सेल का रिस्टोरेशन स्टार्ट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है. ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फॉर्मेशन वेन एवर मीन्स द पीपल हु आर अबाउ 18, okay, 18 years, what they are eligible for blood donation, right? So whenever they donates the blood, that time what happens, वो ब्लड 350 ml 450 ml तक दे देते हैं. ओके, उसके बाद क्या होता है, उनके बॉडी का जो ब्लड का प्रपोर्शन है वो कम होने के बाद अगले दिन से उनका बॉडी का जो ब्लड सेल्स है, इट गेट्स स्टार्ट टू डिवाइड इटसेल्फ, मतलब अंदर जितने भी ब्लड सेल्स रहेंगे वो इट स्टार्ट टू डिवाइड इटसेल्फ, और उससे क्या हो जाता है, नए नए ब्लड के सेल्स फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं. क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी ब्लड डोनेट किया है तो हमारे बॉडी में ब्लड का प्रोपोर्शन कम है. दैट टाइम हमारे जो इंटरनल ब्लड सेल है दे स्टार्ट टू डिवाइड देमसेल्फ एंड सो ऑन, नए ब्लड के सेल्स गेट फॉर्म. ठीक है. सो ब्लड फॉर्मेशन ऑल्सो हैपेंस ड्यू टू सेल डिवीजन. देन 6th पॉइंट इज व्हाट, ऑर्गेनिज्म ग्रो. ओके, ऑर्गेनिज्म मीन्स व्हाट, लिविंग थिंग. लिविंग थिंग ग्रो होते बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन. ओके, इन ह्यूमन बॉडीज नियरली 2 trillion सेल्स डिवाइड एवरी डे. 2 trillion सेल हमारे बॉडी में हर डे डिवाइड होते हैं. ठीक है, वेन एवर वी आर इन अ ग्रोइंग स्टेज. ठीक है. इधर तो कोई प्रॉब्लम है? इफ नो देन विल गो फॉर द नेक्स्ट. ओके, नोट विल हैव टू सी. सो बिफोर गोइंग फॉर दिस नोट, हम लोग को एक ध्यान में रखना है कि हमारे बॉडी में जो सेल है, ओके, सो इनसाइड आवर सेल देर आर मेनी ऑर्गेनेल्स. ओके, वो हर एक ऑर्गेनेल्स में वी आर नॉट गोइंग, वी आर गोइंग डायरेक्टली टू द न्यूक्लियस. ओके, सो दिस इज आवर सेल. ओके, सेल किसका रहेगा, लेट्स से कि दिस इज माई फिंगर. ओके, दिस इज माई फिंगर, ये नेल है, ये फिंगर का इतना छोटा सा एक सेल. ओके, ये सेल यहां पे मैंने जूम करके देखा. सो दिस इज माई सेल मेम्ब्रेन. ओके, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सेल, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, डीएनएज रहते हैं. ठीक है. सो आई एम ड्रॉइंग डीएनएज नाउ. ओके, और वेन एवर सेल डिविजन हैपन्स ना, दैट टाइम ये जो अंदर के डीएनएज है, दैट डीएनए कंडेंस करते हैं. वो डीएनए क्या हो जाते हैं, कंडेंस. कंडेंस मतलब वो इकट्ठा होने स्टार्ट होते हैं, और उससे क्या बन जाता है, क्रोमोसोम. दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन 9th स्टैंडर्ड. ठीक है. सो डीएनए का कंडेंसेशन होके वहां पे क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम. ठीक है ना. तो क्रोमोसोम किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर. और न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट रहता है, सेल के अंदर. और सेल कहां पे प्रेजेंट रहते हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर. ठीक है. सो ये नोट हम लोग अभी रीड करेंगे बिकॉज आपको ये आइडिया आ गया है. बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन द सेल डबल्स अप इट्स क्रोमोसोम. क्रोमोसोम मीन टू से दी क्रोमोसोम, मतलब जो डीएनए से बने क्रोमोसोम्स है विच इज इनसाइड न्यूक्लियस. ओके, वो क्रोमोसोम गेट डबल्स अप. Okay, so during cell division, the cell doubles up its chromosomes number present in its nucleus. अभी आपको भी पता है कि हमारे बॉडी में 23 pairs I mean to say 23 क्रोमोसोम की जोड़ियां, मतलब 23 में से 23 पेयर में मतलब 46 क्रोमोसोम हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. ओके, 46 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम फीमेल, मतलब हमारे मदर से रहेंगे, 23 क्रोमोसोम फ्रॉम फादर से रहेंगे. ठीक है ना. तो इन 23 क्रोमोसोम्स को मिला के हमारे पास 23 पेयर जोड़ियां बनती है. राइट. सो हमारे बॉडी में अभी कंसिडर करो कि एक न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम है. ठीक है ना. सो यहाँ पे क्या हम लोग बात कर रहे हैं, सेल्स डबल्स अप इट्स क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. कब, जब सेल डिवीजन होता है तब. ओके, दैट इज इफ क्रोमोसोम नंबर इज 2n. ओके, 2n एक नंबर आप ध्यान में रख लो कि 2n है हमारे पास, तो वो डबल होके कितना बन जाएगा, 4n. ठीक है. तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि क्रोमोसोम हमारे बॉडी में जितने भी रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में एक क्रोमोसोम है तो वो डबल होके कितना बन जाएगा, 2. अगर हमारे बॉडी में 6 क्रोमोसोम है तो इट विल गेट डबल टू 12. ओके, सो इधर तक आपको अगर समझा है तो लेट्स मूव फॉर द मिटोसिस नाउ. ओके, लेट मी रफ दिस नाउ. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिटोसिस. ठीक है, हम लोग मिटोसिस के बारे में बात करते हैं. सो
as we people know, mitosis related to the somatic cells, right? Somatic cells means what? Let me repeat again. The somatic cells are all those cells except reproductive cell या फिर germ cell. Germ cell को छोड़ के हमारे बॉडी में जितने भी cells है, we are calling them as a somatic cell. And whenever I am talking about somatic cell, keep in mind I am talking about animal cells, okay? And whenever we are talking about stem cells, तो इतना ध्यान में रखना कि we are talking about plants, ठीक है? सो मिटोसिस में सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, ओके? मिटोसिस इज अ प्रोसेस, सेल डिवीजन का प्रोसेस का नाम है, ठीक है? सो सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय मिटोसिस, ठीक है? सो देयर आर टू मेन स्टेप, ओके? दो मेन स्टेप है. कंसिडर करो कि हमारे पास सेल है, राइट? और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर ऑर्गेनेल्स कि हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है, गोल्गी बॉडीज भी रहती है, राइट? राइबोसोम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, ओके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में हम लोग को नहीं बात करना है. वी नीड टू टॉक अबाउट ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका, और सेल के अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म भी रहता है, राइट? ऑर्गेनेल ही है, मतलब लिक्विड पार्ट रहता है सेल के अंदर, ये लिक्विड पार्ट, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है? बात करते हैं उसके बारे में. देयर आर टू मेन स्टेप्स, ओके, फॉर मिटोसिस. मिटोसिस के दो स्टेप्स है. पहला है कैरियोकिनोसिस, ओके, कैरियोकिनेसिस, सॉरी, न्यूक्लियर डिवीजन, ओके? मतलब हमारा जो सेल है वो सेल ऐसे डिवाइड नहीं होगा डायरेक्टली, पहले इंटरनल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा. मतलब न्यूक्लियस के अंदर पहले डिवीजन होगा, तो वो डिवीजन जो होता है, वो प्रोसेस को, वो स्टेप को हम लोग बोलते हैं कैरियोकिनेसिस, ठीक है? न्यूक्लियर का डिवीजन होगा. न्यूक्लियर का डिवीजन वंस इट गेट्स कंप्लीट, देन ओनली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. साइटोप्लाज्म मतलब लिक्विड पार्ट, ओके? लिक्विड पार्ट में फिर वो अदर ऑर्गेनेल्स भी आ गए, ठीक है? तो साइटोकिनेसिस में व्हाट हैपन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है. साइटोकिनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ओके? यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यहाँ पे सेकेंड स्टेप में होता है, ठीक है? बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है किसका डिवीजन होना, न्यूक्लियस का. तो न्यूक्लियस का डिवीजन होने के लिए, मतलब कैरियोकिनेसिस परफॉर्म होने के और अदर सब स्टेप है, ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिटोसिस गेट्स डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स, टाइप में नहीं, स्टेप्स में, ओके? पहले फर्स्ट दिस स्टेप गेट परफॉर्म, देन ओनली दिस स्टेप. सो देयर इज अ सीक्वेंस. पहले कैरियोकिनेसिस विल गेट परफॉर्म एंड देन ओनली साइटोकिनेसिस विल गेट परफॉर्म, okay? Now karyokinesis, which is a nuclear division, itself has 4 steps, okay? Types नहीं बात कर रहे हम लोग, steps के बारे में बात कर रहे हैं. It has 4 steps, okay? Steps means there is a sequence, okay? So karyokinesis is completed through below 4 steps, okay? Below 4 steps के बारे में बात करेंगे. At the same time, let me show you the diagram as well. So this is the diagram, okay, for the mitosis, ठीक है? We had talk about कि there are 4 steps, okay? Let me show you. Prophase, metaphase, anaphase and telophase, okay? ये 4 steps है, but before that there is one more important step as well, that is interphase, ठीक है? इंटरफेस के बारे में हम लोग को यहाँ पे स्टडी में नहीं दिया है, बट देयर इज इंटरफेस एज वेल, ठीक है? इंटरफेस में क्या होता है बेसिकली, so this is the cell structure. Inside that there is a nucleus, so this is the nucleus, okay? Inside nucleus there are number of DNAs, okay? DNAs of dad and mom, okay? So जब DNAs of dad and moms are present inside the nucleus, okay, before mitosis, before prophase, what happens, DNA अपने खुद को डेवलप करने को स्टार्ट करता है. मतलब डीएनए का जो कॉपी रहेगा, लेट्स से कि हमारे पास 5 कॉपीज है, तो 5 कॉपी के 10 कॉपीज होंगे, ठीक है? एंड डीएनएज आर लाइक दिस, स्कैटर्ड फॉर्मेट में रहते हैं ओवर हियर, ओके? सो डीएनए ये पापा के डीएनए हुए, अगेन मॉम के डीएनए यहाँ पे मिक्सड अप स्टेट में रहते हैं, ठीक है? सो दीज ऑल आर द डीएनएस एंड इन द इंटरफेस व्हाट हैपेंस, क्रोमैटिड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है? यहाँ पे क्रोमैटिड्स बनने स्टार्ट होते हैं, ठीक है? डीएनए डेवलप होते हैं, क्रोमैटिड बनने स्टार्ट होते हैं, बिकॉज क्रोमैटिड को आगे जाके क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना है, ठीक है? तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं कि प्रोफेज क्या है. बट बिफोर प्रोफेज हम लोग को डीएनएज एंड क्रोमैटिड्स क्या होता है वो भी जानना जरूरी था, ठीक है? बिकॉज क्रोमैटिड आगे के फेज में भी हम लोग को डिस्कस करना है. सो लेट्स वाइंड अप इंटरफेज ओवर हियर, okay, and let's move for the prophase, ठीक है? प्रोफेज में बेसिकली आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस. सो प्रोफेज में व्हाट हैपेंस,
जो क्रोमैटिड्स बने हुए हैं, ओके, जैसे वी हैव डिस्कस्ड इंटरफेज में डीएनए डबल स्टॉप होते हैं एंड देन आफ्टर क्रोमैटिड के कंप्लीट सेट क्रिएट होते हैं, राइट, क्रोमैटिड के स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं। देन आफ्टर व्हाट हैपेंस, इट मूव्स टू द प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। मीन्स व्हाट, दिस क्रोमैटिड्स जो डेवलप हुए, बिकॉज सी डीएनएस डेवलप हुए हैं, डीएनएस डेवलप हुए हैं, तो डीएनएस से बने हुए सिस्टर ये जो क्रोमैटिड्स है, दीज आर ऑल्सो गेट डबल्स अप, ओके। तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, आगे जाके इनका क्या होता है, दे कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो क्रोमैटिड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, इट मीन्स व्हाट, क्रोमोसोम गेट कंडेंस्ड, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स इन अ प्रोफेज, ठीक है। लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक ओवर हियर, प्रोफेज में। In a prophase, condensation of chromosome starts. Okay, basically thin thread like chromosome. Okay, तो ये अगर वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है, सो इन शॉर्ट यहाँ पे ध्यान देना। इन प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स। कंडेंसेशन मीन्स व्हाट, कलेक्ट होना, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस कंडेंसेशन दे बिकम शॉर्ट एंड थिक। वो शॉर्ट बन जाते हैं छोटे, एंड थिक थोड़े गाढ़े बन जाते हैं, and they start to appear along with their pair sister chromatids. Okay, pair sister chromatids means what, यहाँ पे मैंने खाली एक एक ही बताया है, ठीक है। एक मॉम का क्रोमैटिड एंड एक मॉम का क्रोमैटिड एंड एक डैड का क्रोमैटिड, बट ये खाली एग्जाम्पल के तौर पे है, ओके। इनसाइड न्यूक्लियस देयर आर मेनी क्रोमैटिड्स, ओके। एंड ड्यूरिंग प्रोफेज व्हाट हैपेंस, दिस डैड लाइक क्रोमैटिड्स, ओके, डैड के जो क्रोमैटिड्स है, ओके, डैड के क्रोमैटिड्स कम्स नियर बाय ईच अदर, ओके। सो एक सिस्टर क्रोमैटिड दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। सो क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस at the same time what happens, due to this they become short and thick and they start to appear along with their sister chromatid, okay. Along with that what happens, the centrioles duplicates and each centriole moves to the opposite poles of the cell, okay. यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, these are the centrioles, ठीक है। ये centrioles न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, these are present inside the nucleus only. So these centrioles what happens, they doubles up itself. पहले इसका एक ही कॉपी था, ओके, इसके अंदर एक ही सेंट्रियोल रहेगा जो सेंट्रियोल खुद को डेवलप करता है, एंड दीज सेंट्रियोल, टू कॉपीज ऑफ सेंट्रियोल, वन सेंट्रियोल मूव्स टू द नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई वी कैन से नॉर्थ पोल, ओके, बट देर इज नो नॉर्थ एंड साउथ पोल। बेसिकली आप बोल सकते हो कि दिस सेंट्रियोल गोज टू द टू अपोजिट पोल, ठीक है, यहाँ का एक पोल और यहाँ का एक पोल, ठीक है। सो दिस इज द पोल, दिस इज अनदर पोल, एंड सेंट्रियोल, टू सेंट्रियोल मूव्स टू बोथ द पोल्स, अपोजिट पोल्स, ठीक है। सो सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल्स, ठीक है। दिस टॉपिक इज ऑल्सो कवर्ड। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर, ओके। न्यूक्लियोलस क्या रहता है, न्यूक्लियोलस इज नथिंग बट इट इज द accumulation of DNA at the nucleus, okay. न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का एक सेंटर पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो ये सेंटर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस का भी क्या हो जाता है, डिकंडेंसेशन, ओके, डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है, डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। एट द सेम टाइम जो न्यूक्लियर एनवेलप है, देखो ये न्यूक्लियर एनवेलप था, ये न्यूक्लियर एनवेलप अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है, इट मीन्स इट स्टार्ट टू डिसअपियर। और ये फेज में आपको न्यूक्लियर एनवेलप दिखेगा ही नहीं, मतलब प्रोफेज में इट स्टार्ट टू डिसअपियर और मेटाफेज में कंप्लीटली डिसअपियर होता है, ओके। यहाँ पे स्टार्ट टू डिसअपियर होने के लिए स्टार्ट किया उसने, और यहाँ पे कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, ठीक है। सो प्रोफेज, आई थिंक सो इट इज क्लियर टू यू, ओके। सो दिस 4 टॉपिक वी हैव कवर्ड फॉर प्रोफेज, 4 पॉइंट्स, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉर मेटाफेज। तो मेटाफेज में हम लोग क्या लेके आएंगे, सेंट्रियोल जो 2 पोल पे गया है, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ है, एज वेल एज क्रोमोसोम जो कंडेंस हुए हैं, राइट। तो ये 3 थिंग्स विल कम इन अ मेटाफेज। तो मेटाफेज इसके आगे स्टार्ट होगा। व्हाट हैपेंस इन द मेटाफेज, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स, दिस इंडिविजुअल क्रोमोसोम अलाइन इन अ मिडल। अलाइन इन अ मिडल मतलब क्या, वो मिडल लाइन में आ जाते हैं। अगर हम लोग ये सेल का ये मिडल पार्ट कंसिडर करें, इसको हम लोग फिर कंसिडर करते हैं कि इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। जैसे हमारे अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन रहता है, ये साउथ पोल रहता है, नॉर्थ पोल रहता है फॉर अर्थ, ओके। यहाँ पे सेल के लिए विल कंसिडर दिस इज द मिडल पार्ट, मिडल प्लेन, ओके। मिडल प्लेन विल कंसिडर एज अ इक्वेटोरियल प्लेन। सो
ऑल क्रोमोसोम, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे खाली 2 क्रोमोसोम्स बताए, बट देयर आर 46 क्रोमोसोम फॉर ह्यूमंस. ओके, दीज विल कम इन अ इक्वेटोरियल प्लेन, इन द मिडल प्लेन. ठीक है, मिडल प्लेन में क्यों आते हैं? बिकॉज देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दैट. ओके, सो मेटाफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर इन द मेटाफेज. जैसे हम लोग ने बात किया था, मेटाफेज में ये न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसअपियर होगा. ओके, एक्चुअली आई एम मिक्सिंग 2 पॉइंट्स एट द सेम टाइम. ओके, सॉरी फॉर दैट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स इन द मेटाफेज. ओके, हम लोग थियोरी वाइज जाते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स इन द मेटाफेज, मतलब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट विल गेट डिसअपियर ओवर हियर. ओके, देन आफ्टर क्रोमोसोम कंप्लीट देयर कंडेंसेशन, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट होता है. ओके, एंड बिकम क्लियरली विजिबल, और क्रोमोसोम अच्छे से दिखाई देने स्टार्ट होते हैं अलॉन्ग विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स. ओके, मतलब ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है, ये अनदर सिस्टर क्रोमैटिड है, इससे क्रोमोसोम दिख रहा है. ठीक है, ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन, जैसे हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया था. individual chromosome align in the middle plane, they comes in the middle plane, and what happens? Formation of flexible protein. और यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स थे, ये सेंट्रियोल से एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स निकलते हैं. ओके, वाई दे दिस फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स कम्स आउट? इट इज बिकॉज टू अटैच द सिस्टर क्रोमैटिड्स. so ये सिस्टर क्रोमैटिड है, ये सिस्टर क्रोमैटिड है, ये सिस्टर क्रोमैटिड है इसका, ये सिस्टर क्रोमैटिड है इसका. ओके, क्रोमैटिड्स को अटैच करते हैं ये फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स. ठीक है, फ्रॉम सेंट्रियोल, विच कम्स फ्रॉम सेंट्रियोल. सो फॉर्मेशन ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन, ओके, स्पिंडल फाइबर वी कॉल इट एज. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर. तो ये स्पिंडल फाइबर किसके बीच में बनते हैं? सेंट्रियोल्स एंड क्रोमोसोम. ओके, तो सेंट्रियोल्स एंड क्रोमोसोम के बीच में स्पिंडल फाइबर बनते हैं. ओके, इन द मेटाफेज. विल डिस्कस दिस अगेन. Special type of flexible protein fibers, okay, that is a spindle fiber, are formed between centromer of each chromosome and become between centromer of each chromosome and centrioles. ठीक है, let me repeat this point again. Special type of flexible protein fibers are formed between centromer of each chromosome and centriole. Okay, these are the new words. सेंट्रोमर यहाँ पे रहता है. ओके, यहाँ पे. ठीक है, तो सेंट्रोमर यहाँ पे देखो, सिस्टर क्रोमैटिड है तो उसको एक सेंट्रोमर रहेगा, ये सिस्टर क्रोमैटिड को यहाँ पे एक सेंट्रोमर रहेगा. सो इन शॉर्ट देयर आर 2 सेंट्रोमर. ओके, यहाँ पे हम लोग ऐसे डिजाइन करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे सेंट्रोमर 2 है, एक सिस्टर क्रोमैटिड का एक, दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड का दूसरा. ठीक है, सो ओवर हियर एज वेल कैरी फॉरवर्ड होंगे यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे जो सेंट्रोमर है, एंड दीज आर द सेंट्रियोल. ओके, दीज आर द सेंट्रोमर. ओके, दीज इज द सेंट्रियोल. तो स्पिंडल फाइबर कहाँ पे बनते हैं? बिटवीन सेंट्रियोल एंड सेंट्रोमर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, सो इन दोनों के बीच में बनते हैं, यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में, यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में. ठीक है, तो मेटाफेज में ये फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. आई होप सो ये आपको समझा है मेटाफेज. देन लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट फेज, दैट इज एनाफेज. सो लेट्स मूव फॉर द एनाफेज नाउ. ओके, सो एनाफेज में क्या होता है? इन एनाफेज सेंट्रोमर स्प्लिट एंड देयर बाय सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड दे आर पुल्ड apart in opposite direction with the help of spindle fiber. Okay, let me explain you in a simple way. So in the previous phase, that is in a metaphase, chromosomes were here, right? What happens now? This spindle fiber, they tries to pull this sister chromatid toward this centrioles. ठीक है, तो ये सेंट्रियोल के पास आना स्टार्ट होता है. Who? The sister chromatid. Okay, see, sister chromatids separate into individual chromosome in anaphase. That we'll talk later on, but this one, in anaphase centromer split and thereby sister chromatid. Centromer split होता है, यहाँ पे जो सेंट्रोमर था, let me tell you over here, यहाँ पे. ओके, सेंट्रोमर के 2 पार्ट हो जाते हैं, राइट? सेंट्रोमर splits, anaphase centromer splits and thereby sister chromatids of each chromosome
सेपरेट। सिस्टर क्रोमैटिड जो रहते हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड जो यहाँ पे थे, ये वाला एंड ये वाला, दिस सिस्टर क्रोमैटिड व्हाट हैपेंस, दे स्प्लिट्स, ओके, दे स्प्लिट्स and become separate and they are pulled apart in the opposite direction. They are pulled apart in the opposite direction. तो ये sister chromatid goes upper pole, this sister chromatid goes to the down pole. ठीक है, so with the help of spindle fiber, और इनको कौन खींचता है, spindle fiber. ओके, होप सो आपको ये समझा है. देन पॉइंट नंबर 2, separated sister chromatids are called as a daughter chromosome. Okay, now this sister chromatid will be called as a daughter chromosome. That's why यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, sister chromatid separate into individual chromosome. ये individual chromosome मतलब ही daughter chromosomes है. ठीक है. Point number 3, chromosomes are being pulled appear like a bunch of banana. So chromosome, ये जो खींचे हुए chromosomes है, that will look like a bunch of banana. तो ये bunch of banana आपको दिख रहा है, right? Okay, they appear like a bunch of bananas. ठीक है. तो in this way each set of chromosome reach at two opposite poles of the cell. So इस तरीके से क्या हो जाता है, ये जो chromosomes है, daughter chromosomes, okay, reach at the opposite poles of the cell and so on. Anaphase खत्म हुआ. Okay, now let's move for the telophase. ठीक है. What is telophase? अभी ये जो क्रोमोसोम है, डॉटर क्रोमोसोम, दे रीच आउट टू द पोल. नाउ व्हाट विल हैपन, एज यू नो दिस इज द मिडल पार्ट. ओके, अभी ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, ओवर हियर, एंड ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो टेलोफेज में क्या होता है, इन शॉर्ट पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स. तो यहाँ पे आपको कहीं पे न्यूक्लियर एनवेलप दिख रहा था क्या, नहीं, बट यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म होना स्टार्ट होता है. दूसरी बात यह है कि क्रोमोसोम डीकंडेंस, जैसे यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस होने के बाद यहाँ पे क्रोमोसोम बने थे, अभी ये क्रोमोसोम क्या होना स्टार्ट करेंगे, डीकंडेंस. डीकंडेंस मीन्स व्हाट, डॉटर क्रोमोसोम विल बिकम क्रोमैटिड्स. ओके, क्रोमैटिड्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे और देन बाद में क्रोमैटिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू डीएनएस. ओके, लाइक दिस डीएनएस. टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म. तो ये जो है दो न्यूक्लियाई यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं. जो पहले एक न्यूक्लियाई था, अभी यहाँ पे दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होने वाले हैं. सो टेलोफेज का इन शॉर्ट नॉलेज आपको आ गया. तो लेट्स गो इन अ डीप. ओके, अलॉन्ग विद द डायग्राम. ओके, तो डायग्राम भी साथ में रखते हैं हम लोग. सो द क्रोमोसोम्स which have reached at the opposite poles, chromosome which have reached at the opposite pole पे जो पहुंचे हैं, okay, of the cell now start to decondense. आपको ये पॉइंट समझा कि यहाँ पे डिकंडेंस होना स्टार्ट होता है. नाउ स्टार्ट टू डिकंडेंस ड्यू टू विच दे अगेन बिकम थ्रेड लाइक थिन. पहले हम लोग ने थिक बात किया था, अब ये थिन बनते हैं एंड बिकम्स इनविजिबल. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड. यहाँ पे हम लोग ने बात किया न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसके बाजू में न्यूक्लियर एनवेलप होना स्टार्ट होता है. तो दिस पार्ट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर, राइट. मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है. ओके, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच्ड एट अ पोल. ऐसे क्रोमोसोम जो पोल के यहाँ पे रीच हुए हैं, उनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना स्टार्ट होता है. ठीक है. दस टू डॉटर न्यूक्लियर आर फॉर्म. ओके, रिपीटिंग अगेन. ओके, इन द सेल एंड न्यूक्लियोलस ऑल्सो appears इन ईच डॉटर nucleus. Nucleolus means what? Nucleolus is made up of DNAs. तो यहाँ पे जो nucleolus बनता है सेंटर में. ओके, तो दिस इज द न्यूक्लियोलस. तो ये न्यूक्लियोलस बनना स्टार्ट होता है इनसाइड द डॉटर न्यूक्लिया. ठीक है. एंड स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर. तो यहाँ पे आपको कहीं पे ऐसे स्पिंडल फाइबर दिख रहे हैं क्या, दिस लाइक दिस? सो नहीं. तो यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर है वो भी दिखना क्या हो जाते हैं, वो दे स्टार्ट टू डिसअपियर. ठीक है. Now telophase also we have covered, and now we are moving for the cytokinesis. So in short we have completed karyokinesis. Okay, I mean to say this one, karyokinesis we have covered. Now we are moving for the cytokinesis, mitosis का second step. ठीक है. So cytokinesis will discuss. ये डायग्राम यहाँ पे आप रेफर करना. Okay, I will show you. ठीक है. So
साइटोकिनेसिस में क्या होता है, दिस साइटोप्लाज्म विच इज अ लिक्विड पार्ट, okay, liquid part in the cell, okay, and around nucleus. So the cytoplasm divides by cytokinesis process से cytoplasm divide होना start होता है and 2 new cells are formed, okay. यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 new cell, तो ये जो यहाँ से कट होगा और यहाँ पे सेल बनना स्टार्ट होगा, ठीक है. 2 new cells are formed which are called as a daughter cell. तो ये 2 daughter cells है. Then in this process a notch is formed at the equatorial plane, okay. बेसिकली यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ये जो टेलोफेज में क्या होता है. टेलोफेज में 2 न्यूक्लियाई बनने स्टार्ट होते हैं, बट देन आफ्टर व्हाट हैपेंस, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी जब कंप्लीट होता है, दैट टाइम दे मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर. व्हेनेवर दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एक नॉच बनना स्टार्ट होता है. आई विल शो यू. सो बेसिकली दिस इज द नॉच वी आर टॉकिंग अबाउट इन साइटोकिनेसिस. सो ये नॉच है, यहाँ पे नॉच होना स्टार्ट हुआ, ये टेलोफेज का पार्ट है, यहाँ पे नॉच होना स्टार्ट होता है, और यहाँ पे जो डार्क पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, और ये डीएनएज है, ओके. सो नॉच इज फॉर्म एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ ईच सेल विच डीपन्स ग्रेजुअली. डीपन्स मतलब वो नॉच छोटा छोटा होता जाता है, डीपन्स ग्रेजुअली, एंड देयर बाय 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म. Okay. However, in case of plant cell, instead of notch, वो notch नहीं होता है, the cell wall plate is formed exactly along a midline. Okay. तो plant cell में क्या होता है, यहाँ पे notch create नहीं होता है, यहाँ पे directly एक cell wall बन जाती है. Cell wall बनने से क्या होता है, जैसे आपको पता है कि plant cell के अराउंड cell wall ही रहता है, right? तो यहाँ पे जो एक cell wall था ऐसा, okay, ये जो सेल वॉल था जिससे एक सेल था ये, ओके, इसके बीच में एक सेल वॉल बन जाता है, ओके, इन द मिडल इक्वेटोरियल प्लेन से. सो ये सेल अलग हुआ और ये सेल अलग हुआ, ओके, ठीक है. एंड द साइटोकिनेसिस इज कंप्लीटेड, ठीक है. सो मिटोसिस इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी. बिसाइड्स इट इज नेसेसरी फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ इमैशिएटेड बॉडी. इमैशिएटेड मतलब जो डिसीज्ड बॉडी है, मतलब जो बीमार थी बॉडी, एंड नाउ इट इज गेटिंग रिकवर्ड, ओके. वाउंड हीलिंग के लिए भी हम लोग को हेल्प होता है. वाउंड हीलिंग मतलब हम लोग को स्क्रैचेस पड़े या फिर कुछ एक्सीडेंट हुआ, जब हम लोग को कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, तो वाउंड हीलिंग के पर्पस के लिए भी मिटोसिस हेल्पफुल है. एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, ठीक है. सो मिटोसिस वी हैव कवर्ड. होप सो यू अंडरस्टूड दिस वन, ओके. आई विल फॉरवर्ड यू द पिक ऑफ दिस doc as well, okay. You have to by heart each and every step and write it for 2 times. Thanks and bye bye.